या लेक्चरमध्ये परत ॲज आपण प्रिवियस लेक्चरमध्ये जे बघितलं होतं न्यू फाईल कशी कॉल करायची. सो सेम वे in this lecture also we will call a new file. So here by two way you can call a new file by going into the file command. So here is the first option is new, otherwise you have a shortcut on this bar. Okay, so the first shortcut that is new. Once you click on new, this window will appear. Okay, it is already explained in previous lecture. In that we are going to study a sketcher module, so you have to just select a sketch first. Okay, once sketch is selected, here you can define the name of that sketch. Okay, so if I am saying this sketch 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 2. Okay, here I have my limit. So this will be a name of what we have given in that window is appeared at topmost corner of this new window. Okay, even though it will show you what software you are using and what version you are using. Now in this way we have a complete blackout window. Okay, uh, I told you if you want a grid view. Okay, so there is a grid view, we have to enable it. Okay, once it enable you will get the grid view, and all the buttons which present over here I told you, the use of those buttons I already told you. But again there are some buttons which are not uh, what explained in previous lecture, that also we will cover here. First of all, in the previous lecture we have completed line, rectangle and the circle. So before going for the key point and arc and other things, circular whatever, before going to those things we will see first of all what is the meaning of this shade close loop, what is the meaning of endpoint, highlight endpoints, open ends. Okay, so that we will see first. So suppose this is a rectangle. If I draw this rectangle, okay, now I exited from that tool by just clicking this button, or by clicking escape also. So now we don't know if whether this area is mm, enclosed or not. Okay, or it is a closed entity or not. So it is a very simple entity which is located on the window. So it is very easy to judge whether this entity is closed or not. Okay, it is closed loop or not. But whenever multiple entities are over here like this, okay, okay, over if more than 2 3 4 entities, not only squares, rectangle, anything, square, circle is overlapping on each other, and it does not judge, we not, it is not possible to judge all the entity are close or not. So to have that judgment or to identify which entity have a closed loop, okay, for that purpose we can use this shade closed loop area. Okay, now you can see there is a dimension also visible. So to hide that dimension you can just click on the this button, display dimension off. So as soon as clicking on that, dimension will go on, completely gone. So whenever you clicking this, whenever you disabling this constraint button, then all this HV L1, all those notation or all the constraint will go. That notation is used to help, it is help to you in order to sketch a geometry. H for the horizontal, V for vertical, and here L1 showing a length equal to this L1. Okay, so this L1 is equal to this L1. So it just give you a convenience while drawing कि ये लेंथ किस लेंथ से मैच हो रहा है. अगर फॉर एग्जांपल आपको इस लाइन इतना ही लेंथ निकालना है, इस लाइन इतना ही लेंथ इस लाइन का भी निकालना है. So just you have to drag line by drag the cursor by selecting the line command, and you have to scroll, you have to drag it till L1 not appear. Okay, so without any modification of dimension, directly by this notation L1 you can come to know that dimension is appear as equal to what you want. Okay, so when display constraint button disable कर रहा हूँ, that time all H1 V1 is gone. After that this thing display grid को निकाल रहा हूँ तो grid चला जा रहा है मेरा. Okay, after that this में display vertices, अगर display vertices निकाल रहा हूँ तो
आपको भी समझ में नहीं आएगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट हम जब जूम करेंगे इसको, ओके, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, बट ऑल द वर्टाइसेस, जस्ट लेट इट बी, very small highlighted point will appear here at the corner when we when I press a display vertices. If you observe carefully, small highlighted point will appear when display of vertices button get on. Okay, it is very small point. I think you will not can't notice on your mobile display, but whenever you are seated in front of the desktop screen, you will supposed to notice it. Okay. Now another thing is shaded closed loop. So whenever I am clicking shaded closed loop, so I will come to know that this area is completely closed entity. It not having any small gap in between these two lines, because in the computer aided drafting, okay, very micro gap also considered as a or responsible for a unclosed entity. For example, अभी मैं यहाँ करता हूँ, क्रॉप करता हूँ, so it's supposed to know. Okay, so I'm supposed to cut that small part which is not observable when you are making a drawing on paper. That time you're supposed to feel this is a closed entity. That much small, if entity is here, okay, very small, now it may be noticeable, but smaller than this, if any gap is present in between the two lines or the joint, we can't say it is a closed entity. Okay, so when I'm saying it is a shaded area, when I'm talking shade the closed area, that time it won't shade. Okay, now if I join this line, now it gets shade. Okay, so by just clicking the shade close loop, you're supposed to know which loop, whether there is any leakage or whether there is a gap or discontinuity of line, very narrow discontinuity of line is there or not. Okay, so if I remove this small line, it is very difficult to remove, but just try it. Small line was here, joining line is here. Okay, get locked now. तो लॉक हो गया उसके साथ अभी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, इसको कट कट ही करना पड़ेगा हमें, लाइक दिस, दैट वे ओनली वी कैन रिमूव इट. Now if you want to undo, just undo it. So in this way, this closed loop shade closed loop area button will helpful for you. Now another thing is, अगर हमने क्लोज शेड क्लोज लूप एरिया ये टूल यूज किया और फिर भी ये रेक्टेंगल शेड नहीं हो रहा है, मतलब समवेयर ऑन द लाइन देर इज अ डिसकंटिन्यूटी, दोज लाइन गेट नॉट जॉइन. अब ये बाय ओपन आई से नोटिस हो रहा है क्योंकि समवॉट बिगर गैप है, अगर इससे छोटा गैप रहा तो इट इज नॉट विजिबल. सो एग्जैक्टली कहाँ डिसकंटिन्यूटी है लाइन में, वो चेक करने के लिए दिस टूल वी सपोज टू यूज.
यूज हाईलाइट्स ओपन एंड्स। जैसे हम हाईलाइट ओपन एंड बोलेंगे तो ये दिखाएंगे यहाँ ओपन एंड है। ओके, जैसे हमको पता चला यहाँ ओपन एंड है, so we can join it that open end। हमने उसको ज्वाइन कर दिया, now it gets shade। okay, so in that way this tool we can use। after that the next tool is overlapping geometry। अभी कौन सा geometry overlap हो रहा है, तो उसके लिए पहले हमको overlapping geometry बनाना पड़ेगा। ये है overlapping geometry, geometry के ऊपर geometry, that is overlapping geometry। अभी हम उसको हाईलाइट करेंगे तो देखिए कलर चेंज हो गया है। कौन कौन सी ज्योमेट्री ओवरलैप हो रही है, ये लाइन और इस लाइन का कलर देखिए, इट कन्वर्टेड येलो टू ग्रीन कन्वर्ट हो गया वो लाइन। जो भी ज्योमेट्री ओवरलैप हो रहा है उसने उसका कलर चेंज कर दिया। सो ये ग्रीन हो गया और ये वाला लाइन येलो हो गया। सो वी कैन ऑब्जर्व इट, जो भी ज्योमेट्री ओवरलैप हो रहा है उसका कलर चेंज हो गया। सो 2 3 4 लाइन्स आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, सो इन दैट वे वी कैन say those geometry get overlapped। okay, so this is the use of this about rules। हम डायमेंशन का ऑन किया तो डायमेंशन दिखेगा, कंस्ट्रेंट देखा तो कंस्ट्रेंट दिख जाएगा हमें। ओके, ग्रिड दिखेगा, शेडेड एरिया दिखेगा हमें, क्लोज एरिया शेडेड दिखेगा हमें। ओके, उसके बाद एंड पॉइंट्स दिखेगा। इन दैट वे we can supposed to use this number of tools present above। okay, now move to the next tools। create a circular fillet between the two entities। उसके बाद create a elliptical fillet between two entities। अभी फिलेट बनाना है, और फिलेट कभी भी बनता है तो उसको हम बनाते हैं राइट एंगल कॉर्नर के बीच में। ओके, कुछ जॉइंट्स, टू सरफेसेस है वो एक दूसरे को राइट एंगल में मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ राइट एंगल जनरेट हुआ है, इन दोनों के बीच में हम फिलेट बना सकते हैं। जो फिलेट बनाना है हमें, तो ये फिलेट टूल हम यूज करेंगे, दैट इज सर्कुलर फिलेट। शेड का बंद कर देते हैं। अभी सर्कुलर फिलेट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो फिर से कैंसिल करते, फिर से स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर फिलेट इज फर्स्ट, सिलेक्ट किया हमने, क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट वन एटम। तो ये पहला एटम हमारा, ओके, और ये हमारा दूसरा एटम, दो एटम के बीच में फिलेट बन गया। अभी फिलेट कितने का देना है, इसका रेडियस क्या रहेगा, इन्होंने फिलेट बनने के बाद ओके बोल दीजिए। ओके, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ यू वांट 10, लेट्स सी व्हाट हैपन, इट बिकम टू मच। ओके, so just reduce it to, let's see, okay, so it become 2 now। so this, in that way we can use we can create a fillet in between the two entities। okay, similarly if you want a fillet more than one uh, corners, then no need to select fillet separately, now one stroke only you can do it। okay, just go on again, select this one, select this one, select this one in one attempt, no need to go many time for every time for each corner। just don't escape from the that fillet command and just go on selecting your corner which in which you want to make a fillet। okay, so this is the thing, how fillet we can create in between right angle lines or in the corners। okay, आफ्टर दैट यू कैन एडिट इट सेपरेटली। इसको एडिट कर सकते हैं हम डबल क्लिक करके, टू, यहाँ से भी कर सकते हैं टू, ओके, टू। सो इन दैट वे आवर फिलेट इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ डिलीट करो इस ज्योमेट्री को, डिलीट कर रहा हूँ मैं। आफ्टर दैट हैव अनदर इलेप्टिकल फिलेट, तो उसके लिए भी हम लेंगे, एक्चुअली इलेप्टिकल फिलेट जो है वो पैरेललोग्राम में अच्छा दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। पैरेललोग्राम इज इन दिस वे। ओके, so this is the parallelogram in which we supposed to draw a elliptical fillet in between two lines or the each corner।
So select elliptical fillet. Okay, just click a left button of mouse. Okay, just click left button of mouse wherever you want a fillet. Okay, select this entity, select this entity. Fillet get generated, select this entity, select this entity. Fillet get generated, select this one, generated here and here. So in that way, once you completed all the corners, or you are done with the fillet, just click on OK. Your fillet is present over here. If you want to modify the dimension, you can do it. Okay. So in that way, fillet, it is very easy to draw a fillet, elliptical fillet and the circular fillet. It generated automatically. Just you need to select a corners or the line which is present at the corners. Okay, in that right angle lines or meeting corner. In case of the 3D modeling, it will be a surface. We supposed to select a two plane. In between, you want a fillet. This is a 2D sketch. Okay, so here you supposed to select a line. Okay, in between which you supposed to create a fillet. So this is a fillet command we have completed over here. It's very simple. Wherever we require, you can use it now. This thing. Now go for the another command, that is spline. This is very you can say this is very tricky curve which difficult to draw. I mean to say it is very tricky to draw, or it is very difficult to control this curve. This जो भी इसका कंट्रोल पॉइंट है इस कर्व का, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है. जैसे लाइन, स्क्वायर, सर्कल के हम कंट्रोल पॉइंट कंट्रोल कर सकते हैं और डिजायर्ड ज्योमेट्री हम बना सकते हैं, वैसे स्प्लाइन के बारे में नहीं होता. आप को बहुत कैन से एक्सरसाइज करना पड़ेगा डिजायर्ड कर्व मिलने के लिए, क्योंकि इसका कंट्रोल पॉइंट बहुत सेंसिटिव है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ निकाला, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ निकाला. अब जैसे भी मैं तीसरा पॉइंट घुमाऊंगा उस शेप में ये स्प्लाइन बनते जाएगा. ओके, सो इट इज़ वेरी ट्रिकी. कैसा एग्जैक्टली आपको शेप चाहिए उस रिस्पेक्ट में आपको इस कर्सर को घुमाना है. इट वेट, अभी ये पॉइंट बनाया, फिर भी जो नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो बचे हुए पूरे कर्व को कंट्रोल करता रहेगा, उसका कर्व का शेप कंट्रोल करता रहेगा. आप जैसे उस पॉइंट को रोटेट करोगे इन दैट वे, वो प्रीवियस ड्रॉन कर्व फ्रीज नहीं होता. जब तक आप कमांड से बाहर नहीं निकलोगे तब तक प्रीवियस कर्व फ्रीज नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ लाइन. अब ये हो गया हमारा स्प्लाइन बन गया. So पहले 2 points it is very easy to control, but once you finish with the first 2 points, okay, बताता हूँ आपको फिर से. So suppose here I have to, from this point I have to start. Okay, so I am clicking my left button of cursor mouse and just started to draw spline. Second point यहाँ पे किया. अभी I can, it is easy to control now. Okay, second point it is easy to control. यहाँ सेकेंड पॉइंट पुट किया मैंने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके. नाउ जैसे ही थर्ड पॉइंट के लिए मैं जा रहा हूँ, इट्स सपोज टू हैव अ ह्यूज डिफ्लेक्शन ऑन द प्रीवियस ड्रॉन लाइन. ओके, प्रीवियस ड्रॉन लाइन का जो शेप है वो थर्ड पॉइंट से कंट्रोल पॉइंट स्टार्ट होता है इस कर्व का. इट स्टार्ट टू डिफ्लेक्ट दैट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल टू डिफ्लेक्ट दैट पॉइंट. अभी चलो तीसरा पॉइंट भी ड्रॉ किया तो अब तक पीछे के सब कर्व फ्रीज होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता स्प्लाइन कर्व में. चौथे पॉइंट के जब जाते हो आप, तो आपका चौथा पॉइंट का जो भी जिस तरह से ड्रैग करोगे दैट वे आपका प्रीवियस कर्व मूवमेंट करेगा. सो इट वोंट फ्रीज. जो भी कर्व आपको चाहिए इस बाय यूजिंग स्प्लाइन, वो लाने के लिए आपको बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बहुत माउस का प्रैक्टिस होना चाहिए आपको. ओके, वंस इट फिनिश जस्ट गो टू दिस बटन स्लोली. दिस इज योर व्हाट स्प्लाइन. ये इसका डायमेंशन है, सेंटर पॉइंट से इधर कितना, सेंटर पॉइंट से उधर कितना. ओके, सो दिस इज द स्प्लाइन विच वी हैव ड्रॉन. तो ये थर्ड जो पॉइंट है हमारा, जो थर्ड ये तीसरा पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में आपको डायमेंशन पूछ रहा है. एंटायर लेंथ क्या है होगा उसका, और डेप्थ कितना है उसका. सो इन दैट वे ये आपको डायमेंशन पूछ रहा है. सो दिस इज अ स्प्लाइन. इट इज वेरी रेयरली यूज्ड टू ड्रॉ, बट जहाँ भी लगेगा, इट जस्ट लाइक योर फ्रेंच कर्व. जैसे आप फ्रेंच कर्व यूज करते थे ना टू क्रिएट अ स्मूथ लाइन. ओके, इट जस्ट द फ्रेंच कर्व एडजस्ट करो जिस तरह आपको आप यूज कर सकोगे. जैसे आपका फ्रेंच कर्व यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वैसे ही स्प्लाइन कर्व यहाँ यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. ओके, सो दिस इज द स्प्लाइन विच इज सिमिलर टू अवर फ्रेंच कर्व विच वी आर यूजिंग फिजिकली. ओके, now go for the another
another tool. This is a point, a reference point you can say. Create a point, just create a point. और दूसरा जो है that is a coordinate system. XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना सकते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने के बाद अगर हमने लाइन निकाला है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको XYZ कोऑर्डिनेट वो पूछेंगे. ओके, ये हो गया उसका y कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट, और ये हो गया उसका y कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका जो भी सिस्टम है आपका ज्योमेट्री है उसका इंटायर डायमेंशन. अब ये लाइन है तो उसका लेंथ ही आने वाला है यहाँ. ओके, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ ये है कि अब स्पेस में, अब ये स्पेस ही है. फॉर एग्जांपल अगर ये वर्कशीट खाली है तो ये वर्कशीट का अगर हमें पता है कि हम फिजिकल पेपर पे अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि शीट का साइज A4 है, A1 है, A3 है, A2 है. ओके, या A1 है या A0 है. बट हम कंप्यूटर पे निकाल रहे हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे निकाल रहे हैं, तो इसका जो भी साइज है वो अनडिफाइंड है. इट इज अ स्पेस, ह्यूज स्पेस विच इज अवेलेबल टू ड्रॉ. तो इस पेपर पे आप लगभग 1 किलोमीटर लेंथ इतना लाइन भी निकाल सकते हैं, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. बट इफ यू वांट टू ड्रॉ अ 1 किलोमीटर लेंथ लाइन, इट इज पॉसिबल इन दिस ग्राफ. ओके, फॉर जस्ट टेक एग्जांपल, जस्ट हैव एग्जांपल. चलो दिस इज 24 mm, सो मैं निकालता हूँ 1 किलोमीटर. 1 2 3 4 5 6, चलो ये बहुत हो गया. 0 नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट. 1 2 3 4, इसका लिमिट देख लेते हैं कितना कितना जीरो आया उसने. 1 2 3 4 5 5 लाख mm, इतना बड़ा लाइन निकाला हमने. 5 लाख mm लाइन आप A4 शीट पे नहीं निकाल सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल. चलो इस डायमेंशन को और मॉडिफाई करके देखते हैं कितना जीरो ये एक्सेप्ट करता है. 2 0 बढ़ा देते हो, नहीं 1 0 बढ़ा देते हो. चलो 1 2 3 4 5 6 10 लाख mm इतना बड़ा लाइन हमने शीट पे निकाला है. सो 10 लाख mm इज अ ह्यूज डिस्टेंस. ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो यहाँ आपको लिमिट नहीं है 2D ड्राफ्ट, कंप्यूटर ड्राफ्ट पे. बट फिजिकल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो देयर इज अ लिमिट. A4 A0 शीट के ऊपर निकाल नहीं सकते. A0 शीट के ऊपर का शीट के ऊपर निकालना है हमें, तो हम सीधा बैनर ही बोलते हैं उसको, और बैनर के ऊपर निकालना पड़ेगा, हमें प्रिंटिंग करना पड़ेगा. हाथ से निकालना, ड्राफ्टिंग करना इट इज़ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, so this is the thing which we are getting, which we are saying here. अब ये zoom out इतना हो गया है. जस्ट एक लाइन निकालना पड़ेगा, इसका डायमेंशन ग्रिड, ये बहुत जूम आउट हो गया, इसके वजह से ग्रिड नहीं दिख रहा है, बट ग्रिड इज देयर. जो भी डायमेंशन है देखो कितने में आ रहा है, 41 लाख या समथिंग कुछ तो रहेगा. इसको छोटा कर देते हैं हम, इसको करते हैं 10 mm. नहीं हो रहा है. ज्योमेट्री को डिलीट मारते हैं. इतना जूम आउट हो गया है, स्क्रीन का साइज ही चेंज हो गया इसके वजह से. हमने जो डायमेंशन दिया है 10 लाख mm, उस कंपैरिजन में शीट का जो साइज़ है वो चेंज हो गया. सो न्यू शीट ले लेते हैं हम अभी. उसमें उसको एडजस्ट करने में बहुत ये करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा. चलो न्यू शीट ले लिया हमने. हम क्या एक्सपेंड किया था, पॉइंट और रेफरेंस के लिए. सो दिस इज अ पॉइंट. नाउ जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला, एक आधा कोऑर्डिनेट हमने कॉर्नर में दे दिया, और विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉर्नर वी विल हैव द रेफरेंस ऑफ दिस. इस ज्योमेट्री का क्या रेफरेंस रहेगा, जो भी निकालेंगे वो उस रिस्पेक्ट में लेंगे. वो कोई भी ज्योमेट्री लेंगे
कोई भी ज्योमेट्री बनाओ, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्स वाई, इसके रिस्पेक्ट में इस ज्योमेट्री का एक्स वाई पोजीशन क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो डिफाइन होता रहेगा। तो ये किस लिए निकालते हैं, क्योंकि अगर हमें इस पेज के रेफरेंस में इन सिमिलर इन दैट वे कि हम रोल एंड ड्रॉ हमारे शीट जो रहेगा उसके कॉर्नर को अलाइन करके हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। So we are taking that edge of our sheet as a reference. Now, in that way, this coordinate system is play a reference point for entire geometry. कि space में बहुत दूर ना चला जाए, sheet में बहुत दूर ना चला जाए हमारा geometry. In that way, अगर हम बहुत दूर चला गया तो A0 पेपर पे अगर हमको प्रिंट करना है तो ये लाइन यहाँ रहेगा और या पेपर पे आएगा और इस सर्कल जो है रेक्टेंगल है वो पेपर से बाहर चला जाएगा while printing. So it will define कि हमारा कॉर्नर क्या है पेपर का, in that way you will with respect to that corner you supposed to locate your geometry on the paper while printing. So that's why ये coordinate system हम coordinate point हम locate करते हैं. Okay, ये हो गया coordinate. After that point, that is point कभी चाहिए हमें, for example ये लाइन निकाला हमने, लाइन के सिर्फ दो ही पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट. इन बिटवीन इफ यू वांट अ पॉइंट you can put it. Okay, ये हमने पुट कर दिया. So इस पॉइंट का यूज करके हम दूसरा लाइन उसके ऊपर निकाल सकते हैं. अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट मिल जाएगा हमें, बट एग्जैक्टली आपको मिड पॉइंट नहीं चाहिए, आपको कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए है, तो वो उसका यूज कर इस पॉइंट टूल का हम यूज कर सकते हैं. देखो अभी ये पॉइंट कहाँ से कितना है, इस पॉइंट से 2.28 है. अगर मुझे 5 mm पे चाहिए और अभी मुझे पॉइंट पता चल गया 5 mm यहाँ है और अभी इस पॉइंट से दूसरा लाइन निकालना है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ. ओके, सो दिस इज अ यूज ऑफ दिस पॉइंट टू, क्योंकि हम जब कंस्ट्रेंट ऑन करते तो सब सिर्फ वो मिड पॉइंट ही बताएगा लाइन का. बट इफ यू वांट अ पॉइंट located 5 mm from this end on the line, then इस पॉइंट टूल का यूज कर सकते हैं. हम पॉइंट टूल को निकाला इसके ऊपर, अभी ये पॉइंट 1.95 है, उसको मुझे ठीक डिस्टेंस पे इतना लेना है तो ठीक डिस्टेंस पे मैंने मॉडिफाई किया और वहाँ मुझे दूसरा लाइन निकालना है वहाँ से नीचे जाने वाली. सो इन दैट वे यू कैन यूज अ पॉइंट टूल. ओके, सो अभी बहुत ओवरलैपिंग हो रहा है डायमेंशन, उसको हाइड कर देते हैं हम, डायमेंशन चला जाए. Okay, सब डायमेंशन चले गए. So this is the use of point tool and the coordinate system. After that there is a dimension, create a defined dimension. अभी normally कैसे होता है, when you are enabling this dimension shoot tool, display dimension tool, and by default एक geometry के जितने भी minimum dimension है जो दिखने चाहिए वो दिख जाता है, it will show. But then also if any एज और एनी लाइन नॉट उसका डायमेंशन अगर शो नहीं किया है सिस्टम ने, then you want that dimension, then you can use this normal create defined dimension या create dimension टूल का आप यूज कर सकते हो. ओके, एक मिनट. तो डायमेंशन अगर किसी लाइन का डायमेंशन प्रेजेंट नहीं है तो टू क्रिएट अ डायमेंशन वी विल हैव we can use this button. Okay, this thing. So just click on it. समझो ये लाइन है, इसका डायमेंशन चाहिए हमें तो हम निकाल सकते हैं 2 minutes. To use this tool, just select this point and another one. To select this 2 point, you have to use a left button of mouse. आता मी जे बटन सांगतो तुम्हाला ते प्रॉपरली लिहून घ्यायचं, because whenever you are practicing you supposed to use a different button and you will tell me सर काम नहीं कर रहा है ये. It's not like that. जो बटन जिस चीज़ के लिए दबाना है तभी वो काम करेगा वो. So whenever you want to create a dimension, that time just click left button of mouse and select this point. Again select this point, create left button and scroll जो है माउस का scroll उसको क्लिक करना है. ओके, जैसे हमने स्क्रोल को क्लिक किया ये डायमेंशन क्रिएट हो गया. अब ये डायमेंशन जो भी आया है ऊपर का गायब हुआ, नीचे का आ गया, ऊपर का नीचे आ गया. सो इट विल शो दैट इट मीन दैट कि ऊपर के लाइन का जो डायमेंशन है वही इधर के लाइन का डायमेंशन. इससे ऊपर का गायब हो गया क्योंकि
जैसे हम ड्राइंग निकालते हैं 2D पेपर के ऊपर, तो अननेसेसरी डायमेंशन एक ही लाइन का दो दो अलग साइड में नहीं दिखाते। अगर एक लाइन दूसरे लाइन से इक्वल है, अभी जैसे रेक्टेंगल है ये ज्योमेट्री, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं, सो वन साइड का डायमेंशन दिखाना सफिशिएंट है। वही रूल हम 2D ड्राफ्टिंग के टाइम पेंसिल और पेंसिल पेपर पे हम जब निकालते हैं ड्राइंग, वही रूल हम फॉलो करते हैं इन दैट वे कि पेपर के ऊपर ज़्यादा भरा भरा ना दिखे, पेपर बहुत सिंप्लीफाइड दिखे, जो भी हमारा ड्राइंग है वो डिफिकल्ट ना हो जाए, डायमेंशन से पूरा भर ना जाए। ओके, तो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हम नहीं निकाल रहे, दैट वे ओनली दिस कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो थिंक टू मेक एंटायर ड्राइंग मोर कन्वीनियंट टू रीड। ओके, इसमें ज़्यादा डायमेंशन भरा नहीं होना चाहिए, दिस डायमेंशन इज सफिशिएंट which will explain the dimension of this line also. Okay, so again I can use the same tool. If you want to see the dimension of this vertical line, just click this point, just click this point and click a scroll of mouse. Okay, the dimension will appear. जितने भी डायमेंशन लाइन का देखना है आप देख लो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो। ओके, अब वो बोलेगा ये ऑलरेडी है आपके पास, ये ऑलरेडी नीचे यही डायमेंशन है उधर, तो डू यू वांट डिलीट बोल दो उसको, क्योंकि अननेसेसरी डायमेंशन क्यों क्रिएट करना है अगर ऑलरेडी हमें अवेलेबल है स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो इन दैट वे वी कैन यूज दिस बटन डायमेंशन। नाउ अनदर थिंग, this is modify the value of dimension of spline or text entity. Okay, अभी डायमेंशन मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल दिस लाइन यहाँ तक निकाला, यहाँ तक है, तो अब इसको मीट कराना है हमें, so ये लाइन, जस्ट अ मिनट, दिस इज द फर्स्ट, चलिए इनका डायमेंशन ट्वेल्व कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इसके डायमेंशन पहले। Just a minute. चलो लेट भी ये जो टूल है वो बाद में बताता हूँ तुम्हें। चलो, सो दूसरा थिंग है टेक्स्ट वाला। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ योर नेम, जैसे हम नेम प्लेट बनाते हैं, नाम लिखते हैं, ये लेटरिंग वगैरह जो हमने किया है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, और उसी तरह का लेटरिंग अगर आपको शीट के ऊपर निकालना है, सो ये जो टेक्स्ट है वो आप यूज़ करोगे। तो पहले ये लाइन, ओके, क्या लिखना है आपको, फॉर एग्जाम्पल हम ए लिखते हैं ए। ओके, ये अपीयर देखो कैसे हो रहा है, इट विल अपीयर लाइक दिस, सेंटर, लेफ्ट, राइट। ओके, तो लेफ्ट रखा, वर्टिकल, मिडल, टॉप, बॉटम, आफ्टर दैट
प्लेस अलोंग अ कर्व, अगर अलोंग द कर्व बोला तो कर्व निकालना पड़ेगा हमें पहले। ओके, उसके बाद यहाँ फॉन्ट है अलग अलग, फिलहाल तो एक ही फॉन्ट दिख रहा है, फॉन्ट 3D। ओके, टेक्स्ट सिंबल, अगर हम भी निकालते हैं भी आ गया। सो अभी ओरिएंटेशन गलत हो गया इसका, सो ओरिएंटेशन हम चेंज कर दें। अब ऐसे करके दिखते हैं, सॉरी वैसे ही हो गया फिर से। ओके, सो अब ये अपसाइड डाउन हो गया इसका। अभी प्रॉपरली ओरिएंट हो गया। सो अभी हो क्या रहा है कि किस तरह से हम ड्रैग कर रहे हैं लाइन को, ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन कैसे रहेगा, नीचे से ऊपर, और जितना आप लाइन को एक्सटेंड करोगे उतना आपके लेटर का हाइट रहेगा। ओके, इंक्लाइन किया तो इंक्लाइन के हिसाब से वो जनरेट होगा। ओके, नॉर्मल निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। इसमें छोटे इंटेंशन क्या है और इसका हाइट कितना रहेगा लेटर का, तो 6.4 ना, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम। जो भी है तो जनरेट हो जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो देखते हैं 1:1 जो है उसको चेंज करके देखते हैं व्हाट विल अपीयर। ओके, इस वजह से एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो रहा है, हाइट टू वेट रेशियो, स्लांट एंगल, इटैलिक जो है, इटैलिक वगैरह जो बोलते हैं, इसमें से स्लांट एंगल एडजस्ट कर सकेंगे। अभी कर्व पे लोकेट करना है तो हम पहले कर्व देखते हैं, कर्व निकालते हैं। कर्व निकालना है सो सर्कल चले लेते हैं। ओके, डन। कर्व निकालते हैं, कर्व पे हम ये निकालेंगे, जस्ट गलत हो गया। क्या निकालना है, एक बी, बट प्लेस अलोंग अ कर्व पूछा है, तो कर्व को सिलेक्ट करते हैं। ये कर्व क्या लिखना है, सी डी ई एफ। ओके, इन दैट वे यू कैन ड्रॉ ऑन कर्व। अभी बाकी के फॉन्ट अपीयर हो गए, तभी फॉन्ट नहीं दिख रहे थे। यू कैन चेंज अ फॉन्ट थ्रू दिस वे, यू कैन हैव अ डिफरेंट फॉन्ट। एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो इन दैट वे। स्लांटनेस दैट इज इटैलिक वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो, इसमें और फैंसी निकाल सकते हो। जस्ट ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। अगर आपको स्प्लाइन पे निकालना है, मैं कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन भी हम ट्राई करके देखते हैं स्प्लाइंस पे अगर निकलता है तो। जो सादे कर्व पे निकाला हमने, चलो इस कर्व पे निकाल के ट्राई करते हैं। सिलेक्ट कर्व बोलते हैं, प्लेस ऑन कर्व बोलना पड़ेगा हमें। प्लेस ऑन कर्व तो पूछेगा कौन सा कर्व सिलेक्ट करना है। देखिए ये कर्व हमने सिलेक्ट किया लिया, अब ये स्प्लाइन पे भी प्लेस हो रहा है। ओके, सो ई एफ
जी, जैसा जैसा आपका कर्व है स्प्लाइन, वैसे वैसे वो ABCD जो कुछ भी निकालोगे आप, इन दैट वे it will appear on that. Okay, so it is all about creativity. अभी ये बोलेंगे आप कहाँ लगेगा, so जी आप लोग फैब्रिकेशन वगैरह, जो अपना फैब्रिकेशन वगैरह होता है, फैब्रिकेशन में नेम प्लेट्स बनते हैं, उसके बाद ग्रिल जो होता है, ग्रिल में जो कर्व्स होते हैं उनको कट करना है, उनको बेंड करना है. इन दैट वे इफ़ यू वांट ड्राइंग, उस ग्रिल का ड्राइंग चाहिए हमें, सो इन दैट वे वी कैन क्रिएट अ ड्राइंग ऑन दिस 2D ड्राफ्ट, दिस AutoCAD सॉफ्ट, दिस CAD सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर. ओके, सो ग्रिल का डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो ये कर्व इट इज़ यूजफुल, क्वाइट यूजफुल फॉर दैट. इन दैट वे हम नाम लिख सकेंगे इसके ऊपर. सो ये आप प्रैक्टिस करो, यू विल गेट मोर, यू विल हैव मोर क्रिएटिविटी. इफ यू हैव मोर क्रिएटिविटी ऑन दैट, यू कैन डू इट ज़्यादा अच्छे से इससे. ओके, ओके, चलो नेक्स्ट टूल देखेंगे हम. क्या है नेक्स्ट टूल? पैलेट है ये. पैलेट इज नथिंग बट, अभी आपने देखा होगा यहाँ बहुत स्टैंडर्ड ही ज्योमेट्री अवेलेबल है, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल. अगर आपको पॉलीगॉन्स निकालना है तो पॉलीगॉन निकालना है, ट्रायंगल निकालना है, स्टार निकालना है, या कुछ अलग अलग प्रोफाइल्स है, सी सेक्शन प्रोफाइल, एल सेक्शन, टी सेक्शन प्रोफाइल, दूसरे शेप्स है, आर्क, रेक्टेंगल, क्रॉस, राउंड, वेव फॉर्म्स, ओके, साइनोसाइडल वेव वगैरह. ये जो है ये क्वाइट डिफिकल्ट ज्योमेट्रीज है, जो निकालने के लिए 9x9 निकालना पड़ेगा आपको. जैसे आई सेक्शन निकालना है, तो ये आई सेक्शन अगर आपको मैन्युअली निकालना है तो आपको ऐसा लाइन बनाओ, फिर इस तरह जैसे सबको डायमेंशन देते रहो, ऐसा निकालना पड़ेगा. बट इन द प्रोविंट लाइब्रेरी देयर आर प्री डिफाइंड सेक्शंस आर प्रेजेंट. ओके, सो उसका यूज़ करके इस तरह के तरीके से आपको आई सेक्शन निकालना पड़ेगा मैन्युअली. बट ऑलरेडी इसके प्रोफाइल में, इसके जो लाइब्रेरी है उसमें ऑलरेडी अभी उसके ये निकालने के बाद भी यू हैव टू मॉडिफाई द डायमेंशन. ओके, तो ये सब चीज़ करना पड़ेंगे. इट टेक्स अ टाइम टू ड्रॉ द कंप्लीट द स्केच. तो यहाँ जो पैलेट है उसमें ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल ज्योमेट्री है, उसका यूज़ कर सकते हैं. सो क्या क्या अवेलेबल है? पॉलीगॉन्स अवेलेबल है इसमें, प्रोफाइल्स अवेलेबल है, उसके बाद शेप्स अवेलेबल है, अलग अलग तरीके की शेप्स. उसके बाद स्टार्स अवेलेबल है, स्टार 3 टिप स्टार, 4 टिप स्टार, 7 टिप स्टार, ओके, 20 टिप स्टार्स. ओके, सो ये स्टार अलग अलग पॉली थिंग्स यहाँ अवेलेबल है. अगर आप देखोगे तो कैसे दिखेंगे वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएंगे स्मॉल विंडो में. फिर देखिए पॉलीगॉन निकालते हैं हम. पॉलीगॉन में सिंपलेस्ट पॉलीगॉन निकालते हैं पेंटागॉन. पेंटागॉन निकालना है हमें. ओके, अभी उसको पुट कर दिया हमने. अभी कैसे पुट किया, फिर से कैंसिल करते हैं. जस्ट अ मिनट. जो भी चाहिए उसको डबल क्लिक करें. इधर क्लिक नहीं होगा, मैंने ट्राई किया अभी, बट जो भी चाहिए उसको यहाँ क्लिक करो. ओके, जो भी चाहिए, जो भी आपको समझो पेंटागन चाहिए, तो ये प्लस करके साइन अपीयर होगा कर्सर के साथ. यू जस्ट पुट इट. अब उसका स्केल क्या है वो पूछेगा, मतलब स्केल इन द सेंस वो एज पूछेगा. एक एज कितने की है, समझो 12 की, मैंने 12 mm का स्केच है, जो रोटेट कितने एंगल से रोटेट करना है. यू विल सी, अगर रोटेट हम कर रहे हैं 180 से तो उसका एंगल क्या बन रहा है. एग्जैक्टली अपसाइड डाउन हो गया उसका, 90 बोलते हैं हम. ओके, अभी ये नहीं जम रहा है आपको तो डायरेक्टली ऐसे घुमा सकते हो, कौन सा एंगल पे चाहिए. एज, आई डोंट थिंक एज होगा, इस तरीके से होगा. अभी जैसे मैं एज को ऐसा कर रहा हूँ, इंडिविजुअल एज पकड़ के नहीं होगा. यू हैव टू जस्ट होल्ड दिस थिंग, जहाँ भी ऐसे डायमेंशन जैसे लाइन, जैसे डायमेंशन का लाइन है वैसा जिस कॉर्नर में अपीयर हुआ है उसको माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ना है और सिर्फ ड्रैग करना है. जैसे आप ड्रैग करते हो आप, या ये जो विंडो है, इस विंडो में नंबर चेंज हो रहा है वो देख सकते हैं. कितने डायमेंशन का चाहिए, ऐसे आप ड्रैग करके भी कर सकते हो. एंगल आप जैसे घुमाओगे वैसे एंगल चेंज हो रहा है इस विंडो में, मैन्युअली डाल सकते हो, जो कि आप, अगर आपको एग्जैक्टली पता है. ओके, सो ये हो गया आपका
पैलेट ये अब इसी ओरिएंटेशन और इसी स्केल में जाए तो क्लिक ऑन ओके, ये बन गया। अब ये जो बाकी का जो डॉटेड लाइन है इट डजंट प्ले एनी important role, so you can delete it, just click on it and just press your delete button। okay, after that square, डबल क्लिक करो स्क्वायर के ऊपर। अब ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बहुत ही छोटा बन गया, इसको इनलार्ज कर लेते हैं 20। ओके, ये बहुत ही बड़ा हो गया, लेट इट बी। सो ये हो गया आपका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में सिर्फ ये मेन कंस्ट्रक्शन लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये जो डॉटेड लाइन है जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए है, उसको डिलीट मार सकते हो। उसको क्लिक करो ले माउस के लेफ्ट बटन से और डिलीट बटन दबा दो, चला जाएंगे। ओके, इस तरह से आप ड्रैग करोगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ज्योमेट्री देन आल्सो वो डायमेंशन चेंज करेंगे। अब ये स्क्वायर है तो एग्जैक्टली ऑल 4 साइड्स आर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वन साइड। ओके, अब ये पॉलीगॉन भी आप करने जाओगे तो पूरा उसका शेप ही चेंज हो गया। ओके, सो बेटर है पॉलीगॉन को छेड़ो मत। पॉलीगॉन को जब वो स्केलिंग हम करते हैं इस टाइम पे ही, उस टाइम पे स्केलिंग करो एग्जैक्टली, उसके बाद छेड़ोगे तो इस तरह का वो शेप चेंज कर देंगे आपका। ओके, आफ्टर दैट अलग प्रोफाइल्स देखते हैं। ये प्रोफाइल इट्स वेरी सिंपल, स्केल पूछेगा क्या है उसका स्केल, उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है। स्टार्स है, स्टार सिलेक्ट कर दिया हमने, ये हो गया स्टार्स। कितना स्केल चाहिए समझो, ठीक किया, क्या हो रहा है देखो। ओके, 4, अरे बाप रे 4 हो गया, ये जस्ट 7 स्टार बढ़ गया। ओके, सो इन दैट वे हम साइज चेंज कर सकते हैं स्टार का। स्टार को देखते हैं हम कुछ कम छोटा करके। ओके, सो इन दैट वे आप उसको चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, आप कैसे कर रहे हो। और ये नॉट नेसेसरी इंजीनियरिंग ड्राइंग के हर चीज़ के लिए आपको लगेगा। ये जस्ट कुछ फैंसी एटम या फैब्रिकेशन के रिलेटेड कुछ रहेगा। एनी ब्रैकेट्स हैव कुछ सीएनसी पे हमको कट करना है ब्रैकेट, और उसको बहुत फैंसी ज्योमेट्री है तो उसका ड्राइंग अगर हमें बनाना है ये टूल्स यूज़ करके हम बना सकते हैं। so, इसके लिए ये यहाँ अवेलेबल्स है कि एक शीट मेटल है और शीट मेटल से हमको ब्रैकेट बनाना है, और कुछ हमारा जो घर में जो कॉर्नर्स रहते हैं उस कॉर्नर में ब्रैकेट फिक्स करना है, और उसको उस शीट मेटल से बना है और उसके ऊपर ड्राइंग्स अवेलेबल है, कटिंग करना है। तो इसके लिए ये टूल्स हमें यहाँ अवेलेबल है टू ड्रॉ दैट क्रिएटिविटी। ओके, ये हो गया पैलेट के बारे में। नाउ दिस इज अ डिलीट सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने बनाया। अब समझो स्क्वायर का ये लाइन मुझे डिलीट मारना है। जैसे जैसे मैं स्क्वायर बनाता और स्क्वायर के किसी लाइन पे जाके क्लिक करता तो वो लाइन हाईलाइट होता है। देखिए इस पे किया तो ये लाइन हाईलाइट हुआ, इस पे किया तो ये लाइन हाईलाइट हुआ, इस पे किया तो ये लाइन हाईलाइट हुआ। सो जितना लाइन हाईलाइट हो रहा है उतना कम्प्लीटली इरेज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिलीट सेगमेंट टूल सिलेक्ट किया और जिस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, जिस लाइन पे जा रहा हूँ डिलीट सेगमेंट टूल सिलेक्ट करके, जितना लाइन हाईलाइट हो रहा है वो पूरा डिलीट होगा जैसे ही मैं उस लाइन पे जाके माउस का लेफ्ट बटन दबाता हूँ। ओके, बट मुझे एंटायर लाइन नहीं डिलीट मारना है, मुझे उस लाइन कुछ सेक्शन ही डिलीट मारना है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को दो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलो इतना ही, इन दो लाइन के बीच में की लाइन ही मुझे डिलीट मारना है। फॉर एग्जाम्पल ये इतनी लाइन डिलीट मारनी है, दो लाइन के बीच में। सिलेक्ट डिलीट सेगमेंट टूल एंड देखो जैसे मैं लेके जा रहा हूँ उधर सिर्फ उतना ही लाइन हाईलाइट हो रहा है, बट आफ्टर सिलेक्टिंग डिलीट सेगमेंट ओके उतना ही लाइन हाईलाइट हो रहा है जितना कट होने वाला है। चलो इतना लाइन कट कर दिया। अब बाकी के जो ये जो रेफरेंस के लिए लिया था वो लाइन में मैं डिलीट मार दूंगा। ओके, इन दैट वे इतना ही स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पोर्शन डिलीट होगा। ठीक है, चलो ये और मुझे डिलीट मारना है, ये कॉर्नर डिलीट मारना है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉर्नर है वो डिलीट मारना है। सो जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए लाइन निकाला, अदरवाइज ये लाइन नहीं निकलता मैं तो पूरा लाइन डिलीट हो जाता। ओके, सो जो भी इंटरसेक्शन है इस दो लाइन का, ये इंक्लाइन लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसका इस साइड का और इस साइड का
वन टाइम यूज करने के बाद उतना ही लाइन डिलीट होने वाला है। ओके, सो इधर क्लिक किया तो इतना इतना लाइन हाईलाइट हो रहा है, इधर क्लिक किया तो रिमेनिंग लाइन हाईलाइट हो रहा है। सो इन दैट वे लाइन हाईलाइट हो रहा है। चलो अभी इतना सेगमेंट डिलीट मार दिया मैंने, इतना डिलीट मारा, ये डिलीट मारा और ये डिलीट मारा। चलो, सो ये हो गया चैम्फरिंग। हम चैम्फर मारते हैं ना कॉर्नर में, फिलेट मारते हैं या चैम्फर मारते हैं। सो इन दैट वे आई कैन हैव अ चैम्फर ऑन द कॉर्नर। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन यूज अ डिलीट सेगमेंट। हम सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सर्कल निकाला, ओके, सर्कल का भी ऊपर का पोर्शन चाहिए हमें, सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए। सो जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग, डिलीट इट। अभी ये एज अ वन एंटिटी प्लेट है, ये लाइन डिलीट मारा, ये लाइन डिलीट मारा, अभी ये हो गया हमारा वन एंटिटी। ओके, और जैसे हम इसको क्लोज सेक्शन हाईलाइट बोलते हैं, अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो समवेयर किधर तो वो क्या है, ब्रेक है। चलो इधर ब्रेक है, हमको पता चल गया इधर ब्रेक है, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं हम टूल यूज करके। अब ब्रेक है क्या, अभी भी ब्रेक है, दिखा रहा है वो ब्रेक है। इनलार्ज करना पड़ेगा हमें, एग्जैक्टली क्या ब्रेक है, जस्ट अ मिनट। सो हाईलाइट करके देखते हैं मेरा क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ओके, सो वेरी स्मॉल स्मॉल गैप्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है। तो ऐसे अगर गैप है जो रिजॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट जा रहे हैं, तो डायरेक्टली पूरे लाइन को डिलीट मार देना इस केस में। ऑल लाइन इज सपोज टू डिलीट इट एंड एक ही लाइन बनाओ यहाँ से लेके यहाँ तक। नंबर ऑफ जॉइंट्स वाज देयर, अब एक ही लाइन बना दिया हमने, अभी ये एंटिटी क्लोज हो गई। ओके, so in that way we can use a number of tools which I have explained you. It is up to you how you can use it, how do you means how your creativity use. So ये तभी हो सकता है जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज कौन सा टूल कहाँ कब यूज करना है, इसका आपको यूज टूल का यूज पता है आपको, फिर भी कौन सा टूल कहाँ यूज करना है इसका इंटेलिजेंस जो बोलते हैं वो डेवलप तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये इस तरह से हम इस जो अनक्लोज एंटिटी उसको क्लोज कर दिया। ओके, नाउ we will have another tool that is most important tool which is present at the toolbox, that is mirror tool। अभी mirror tool बहुत काम का टूल है क्योंकि it helps to duplication, किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाना है बट अबाउट द सिमेट्री। ओके, इट क्रिएट डुप्लीकेशन बट अबाउट सिमेट्री को डुप्लीकेशन करता है। सो पहले आपको एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, ये है हमारा रेफरेंस लाइन। ओके, इस लाइन की साइड से जो सर्कल है, अभी हमको मिरर करना है इसको। सो जैसे हम ज्योमेट्री को सिलेक्ट, पहले देखो ज्योमेट्री को सिलेक्ट नहीं किया है तो ये मिरर जो एंटिटी मिरर जो टूल है वो डिसेबल है। जैसे हम इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं, मिरर टूल जो था वो एनेबल हो गया, तो तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। अभी कोई भी ज्योमेट्री सिलेक्ट नहीं है तो वो मिरर टूल डिसेबल ही रहेगा। जैसे हम एक ज्योमेट्री सिलेक्ट कर रहे हैं, ये टूल ज्योमेट्री सिलेक्ट किया, वैसे वो मिरर टूल एनेबल हो गया। मिरर बोलो और क्या होगा, सिलेक्ट आइटम, किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए। सो ये रेफरेंस लाइन के अबाउट एग्जैक्टली 44.5 इतने डिस्टेंस पे ये आपका सर्कल बना है। अभी आपको और नीचे सर्कल चाहिए, इसके नीचे भी आपको सर्कल चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर से एक रेफरेंस लाइन निकालना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली नीचे दो सर्कल चाहिए तो कंट्रोल बटन दबाओ, ये एक एंटिटी सिलेक्ट करो, ये एक एंटिटी सिलेक्ट करो, दो एंटिटी सिलेक्ट हो गया। मिरर बटन पे दबाओ और आपको किस लाइन के अबाउट चाहिए तो इस लाइन के अबाउट। ओके, सो इन दैट वे नो नीड टू ड्रॉ अ सेपरेट सर्कल फॉर द रिमेनिंग क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के लिए और इस क्वाड्रेंट के लिए सेपरेट आपको सर्कल निकालने की जरूरत नहीं। जस्ट मिरर इट वॉट एवर यू वांट टू मिरर, बट मिरर लाइन यू हैव टू डिफाइन। तो उसी लाइन के अगेंस्ट में आपको सिमेट्रिक ज्योमेट्री मिलने वाला है। सो दिस इज अ tool which we have to use in a sketcher model।
I hope you have understood. अगर कुछ डाउट रहे तो you can ask me.